Hi everyone, welcome back to my YouTube channel Gypsy Escape. My name is Annie, and if you are seeing this face for the very first time, please take a moment to subscribe to my channel and do hit the notification bell button to be notified every time a new video drops here on this channel. And I'm planning my first international trip, so I thought I will make a series जिसमें मैं सारा कुछ discuss करूँगी how I selected my first country for international trip, how I am planning my itinerary and all of that. So ये जो videos हैं ये series में आएंगी. So if you are also someone who is planning their first international trip, I hope you will find this video helpful. Now before I get started, there is going to be construction noise in between. I'll hope कि editing में थोड़ा सा वो noise कम हो जाए, but please bear with me because I couldn't delay this video any longer and मुझे नहीं पता ये construction कब तक चलेगी. Now in this first part of the video, we are just going to discuss about selecting the first country for your international trip. If you are someone who has fresh Indian passport, that is without any travel history, and there are going to be multiple sections, so मैं timestamps डाल दूँगी. So accordingly, you can browse this video आराम से, and जो section आपको interesting लगेगा, you can watch for your ease. Coming to the first part in this section, which is going to be selecting a country which is either e-visa, visa-free or visa on arrival for Indians. Now ये part सबसे ज़्यादा important रहता है, at least it was for me, because मैं जब पहली country के लिए अपना international trip plan कर रही हूँ, I don't want कि मुझे visa rejection आ जाए. So I want a simpler, easy, no fuss process. Now you don't have to do all this जितनी भी मैंने extensive research की है, because I have listed all the countries in an Excel sheet जो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेकआउट कर सकते हो. नाउ ऑब्वियसली देयर आर लॉट ऑफ कंट्रीज इन साउथ ईस्ट एशिया, मिडल ईस्ट लाइक यूएई, ओमान एंड कतर, एंड देन अफ्रीका में हमारे पास काफ़ी सारी हैं लाइक सीशेल्स एंड केनिया. अपार्ट फ्रॉम दैट यूरोप में भी इंडियंस को काफ़ी कंट्रीज़ में, लाइक काफ़ी नहीं, 3-4 कंट्रीज़ में ई वीज़ा मिलता है, एंड देन देयर इज़ ऑल्सो अ वीज़ा फ्री कंट्री इन यूरोप फॉर इंडियंस. So you can check out the list from the description box below and accordingly decide कि आपको अपनी first international trip कौन सी country में लेनी है. Now while I was doing my research, I came across a YouTube video which was by Travel Man Today, and जितनी भी countries के लिए e-visa process है ना, he has a video on them. Like एक video में he has covered all the countries का e-visa process. So once you have selected the country, you can check out his video. I'll link in the description box below. After having a list of the countries, the second thing is to decide कि आप किस month में उस country में visit करना चाहते हैं. So knowing the peak season and the shoulder season is important, जिसको मैंने again काफ़ी easy कर दिया है. जो आप Excel sheet download करोगे, उसमें ये दोनों seasons हर एक country के लिए लिखे होंगे. Now peak season के बारे तो सबको पता है, when the tourists will be a lot and थोड़े prices जो हैं वो भी ज़्यादा हो रखे होंगे. But this goes without saying that someone might enjoy summers और दूसरे इंसान को किसी country का winter season देखना है. So obviously उसके लिए आपको अलग से research करनी होगी. But I have mentioned a shoulder season also. Now shoulder season is the season like 1 month before the peak season starts and 1 month after the peak season has ended. Now obviously weather थोड़ा सा change होगा, but there won't be a lot of difference between the peak season weather and the shoulder season weather. आपको टूरिस्ट कम मिलेंगे and prices भी relatively आपको shoulder season में कम मिलेंगे. The next section is to decide कि आप किस vibe के लिए जाना चाहते हैं. Are you someone who enjoys beach life, mountain life, या फिर आप एक country का architecture देखना चाहते हैं, like you want to see the skyscrapers. सो अकॉर्डिंगली आप जब एक फुल लिस्ट डाउनलोड करेंगे जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली है, इट विल बी ईजियर फॉर यू टू क्रॉस आउट द कंट्रीज़. लाइक आपको उस कंट्री की वाइब नहीं पसंद तो आप वहाँ नहीं जाना चाहते. फॉर एग्जाम्पल फॉर मी सिंगापुर इज़ अ कंट्री जिसके लिए मैं पहली बार नहीं ट्रैवल करना चाहती. आई वॉन्ट टू सी मोर ऑफ नेचुरल लैंडस्केप्स. So Singapore is out of the list, then Jordan is out of the list. Apart from that, UAE will be out of the list. So इससे क्या है, मेरी जो लिस्ट है और छोटी हो जाएगी and I will be left with handful of countries जिसके बारे में मैं आगे रिसर्च करूँगी.
फॉर समवन हु enjoys beaches, तो आपके लिए थाईलैंड, Maldives and Mauritius will be the best one. For tropical experience, you can check out Fiji and Seychelles, and obviously they have easier visa process for Indian passport holders. Now for someone who enjoys mountains, I guess nothing can beat Nepal for that. Apart from that, you have Georgia also अगर आपको hiking वगैरह पसंद है, and Bolivia is also there. Now coming to city culture, a lot of countries are famous for their skyscrapers such as Singapore and Dubai. So आप यहाँ पर जा सकते हैं अगर आपको थोड़ी city life experience करनी है, like you want to see more of man-made wonders. Now what I usually do जब मैं इंडिया में भी travel जैसे कर रही होती हूँ, so I go on Google Maps and इसके ऊपर I'll just search like things to do in Thailand. And this will help me get the vibe of a place. As you can see, इसमें Grand Palace आ गया, so I can see कि यहाँ पर mountains काफ़ी हैं. Then there are a lot of national parks. So इससे क्या है, मुझे roughly एक idea मिल जाएगा, and I'll see if this is something that I am attracted to, and उसके according I can decide if I want to put this country in my list for first international travel. यूजुअली जब मैं इंडिया में किसी भी सिटी के बारे में सर्च करती थी, सो गूगल यूज टू हेल्प अ लॉट. हाउएवर आई फाउंड दिस एप्लीकेशन जो मैं इंटरनेशनल ट्रिप के लिए प्लानिंग के लिए मैं एक्सप्लोर कर रही हूँ, विच इज़ गेट योर गाइड. नाउ दिस नॉट ओनली टेल्स यू अबाउट थिंग्स टू डू, बट इसमें टूर्स भी अवेलेबल हैं. सो फॉर एग्जाम्पल आई हैव टू look for Thailand, so I'll search for it and it will give me all the activities that are there in a place. एंड आप बिल्कुल नीचे जाके एक्सप्लोर करोगे, सो इट विल टेल यू ऑल द सिटीज़ इन दैट कंट्री जो काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट ही हैं, एंड आप वो सारी प्लेसेस यहाँ से लिस्ट डाउन कर सकते हो. नाउ द सेकेंड सेक्शन इज़ गोइंग टू बी अबाउट फ्लाइट्स. अब फ्लाइट्स का डिसाइड करना इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर टू रीजन्स. फर्स्ट इज़ ऑब्वियसली फॉर बजटिंग, बिकॉज फ्लाइट्स एंड अकोमोडेशन दो चीज़ें हैं जो बजट को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट, ट्रैवलिंग इंटरनेशनली मीन्स ऑल्सो लुकिंग फॉर फ्लाइट्स जो डायरेक्ट हों, बिकॉज अगर कहीं पर स्टॉप है स्पेसिफिकली इन अ डिफरेंट कंट्री, तो इसका मतलब है आपको एक ट्रांजिट वीज़ा भी लेना पड़ेगा. फॉर एग्जांपल, अगर आप सिंगापुर एयरपोर्ट पे आपका स्टॉप है, सो अगर आपको एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल के लिए अपनी फ़्लाइट पकड़नी है, तो यू नीड अ ट्रांजिट वीज़ा. एंड फॉर समवन हु इज़ गोइंग टू ट्रैवल इंटरनेशनली फॉर द फर्स्ट टाइम, मैं इतना झंझट नहीं लेना चाहती. मैं उस कंट्री का वीज़ा ही अप्लाई कर दूँ, उतना ही काफ़ी है. सो फॉर माई फर्स्ट ट्रिप आई वॉन्ट टू लुक फॉर कंट्रीज जहाँ के लिए डायरेक्ट फ्लाइट्स हैं इंडिया से. उसके लिए द फर्स्ट ऐप दैट आई यूज़ इज़ स्काई स्कैनर, एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस ऐप इज़ कि आप इजीली सर्च कर सकते हो कि अमृतसर से एवरीवेयर ऑल ओवर द वर्ल्ड कहाँ कहाँ की फ़्लाइट्स है. सो आई जस्ट पुट इन द मंथ, आई विल पुट इन कि मुझे रिटर्न फ़्लाइट्स चाहिए या वन वे फ़्लाइट्स चाहिए, एंड इट विल शो मी अ लिस्ट. नाउ ये जितने भी प्राइसेस आ रहे हैं मैं इसको एक्सेल शीट में डालूंगी, बिकॉज इवेंचुअली इट विल हेल्प मी शॉर्ट लिस्ट कि कहाँ पर मुझे थोड़ा सस्ता मिल रहा है. फॉर एग्जांपल, मलेशिया है, यूएई है, थाईलैंड है, नेपाल है, देन वी हैव वियतनाम, इंडोनेशिया. सो ये सारी कंट्रीज़ जो हैं, आई विल डिसाइड कि मेरा बजट है लाइक 25K फॉर राउंड फ्लाइट्स. सो जितनी भी इसके अंडर आ रही हैं, एज यू कैन सी, सिर्फ 7 फ्लाइट्स बच गई, 7 कंट्रीज़ बच गई. सो मेरे पास जो है वो लिस्ट काफ़ी छोटी हो जाएगी. ऑब्वियसली अपार्ट फ्रॉम योर सिटी, आप देख सकते हैं कि पास की जो सिटी आपके लिए एक्सेसिबल. फॉर एग्जांपल, आई एम ओके विद ट्रैवलिंग फ्रॉम न्यू दिल्ली एज वेल. सो न्यू दिल्ली से क्या पता कुछ फ़्लाइट्स सस्ती हों, एंड इट इज़ एक्सेसिबल फॉर मी एज वेल. सो एज यू कैन सी, अब तो बांग्लादेश आ गया, नेपाल आ गया, एंड ओमान, थाईलैंड, मलेशिया फ़्लाइट्स. एज यू कैन सी, वियतनाम जो 25K थी, अगर मैं न्यू दिल्ली से ये फ़्लाइट लेती हूँ, मुझे ये 16K की पड़ रही है. So this is how you can plan your budget for the flights when you are traveling internationally. Flights के साथ साथ second thing जो budget में contribute करेगा is the currency of a country relative to India. So उसके लिए I have 2 apps जो not only currency में help करती है but also helps me decide that if I'm living in that country for some time, तो मेरा नॉर्मल चीज़ों में लाइक ट्रांसपोर्ट, खाना, इस सब में खर्चा कितना आएगा, लाइक द कॉस्ट ऑफ लिविंग while I am in that country. Now for this particular section I use 2 apps and that's all. First is Exi. So इसमें करेंसी का पता लग जाता है. अगर मैं मलेशिया जा रही हूँ, so 1 मलेशियन करेंसी जो भी है, जैसे रिंगेट है, so वो INR के कितने इक्विवेलेंट होगी.
And the second app that I use is Numbeo, and this helps in knowing the cost of living. For example, I'll select the country as we were talking about Malaysia only. So yeah, Malaysia इसको search करूँगी and it will give me the cost of living in that particular country, which includes a meal if I'm going to an inexpensive restaurant, and meal for 2 people जो है वो कितना cost करेगा. So it is 15 Malaysian ringgit. So I'll just put कि अगर मैं बिल्कुल local खा रही हूँ, so 15 rupees जो है it will almost cost me like 300 rupees in INR. So 300 rupees है, which I believe will be okay for me if I'm traveling solo. So these two apps, when combined together, will help you decide if the country falls in your budget or you will go overboard with it. While we were discussing about budgeting, it is important to see कि आप कितने लोगों के साथ जा रहे हो या आप solo travel कर रहे हो. Not only is it important ताकि आप budget decide कर सको, but even country decide करने के लिए बहुत important है. Because कुछ countries होंगी जो solo travelers के लिए relatively easy to explore है, safer है. कुछ countries होंगी जिनकी vibe ही honeymoon and couple vibes होंगी. So accordingly you will be able to decide. अगर मैं एग्जांपल लूँ तो सोलो ट्रैवल डेस्टिनेशन सच एज सिंगापुर, थाईलैंड जो है वो काफ़ी फेमस है सोलो ट्रैवलर्स के अमंगस्ट, बिकॉज वहाँ पर ट्रांसपोर्ट बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव है. लाइक द पब्लिक ट्रांसपोर्ट, यू हैव अ लॉट ऑफ एप्लीकेशंस. एंड अगर मैं जापान की एग्जांपल लूँ तो वहाँ पर रेल ट्रांसपोर्ट बहुत सही है. सो इट विल बी ईजियर टू एक्सप्लोर दिस कंट्रीज अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हैं इंटरनेशनली फॉर द फर्स्ट टाइम. At the same time, if you are going with your family and थोड़े elderly लोग हैं, so you would want a place जहाँ पर इतना चलना ना पड़े या फिर जहाँ पर थोड़ा weather favorable हो. For example, अगर मैं दुबई का example लूँ, my mom and my नानू नानी went to Dubai for the very first time. So उनके लिए वो काफ़ी comfortable था because malls वगैरह में वो जा रहे थे and जितनी भी attractions वो explore कर रहे थे वो air conditioned थी. So the weather जैसा मर्जी हो उनके लिए वो कंफर्टेबल था. सो दिस इज़ हाउ यू कैन अगेन डिसाइड दैट जिस कंट्री में आप जाना चाहते हो वो आप जिनके साथ जा रहे हो उनके लिए भी वो सही हो. ऑब्वियसली द नेक्स्ट सेक्शन इज़ द टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट इज़ देयर इन द कंट्री. अगर मैं एशिया की बात करूँ तो वहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क बहुत एक्सटेंसिव है. ग्रैब एंड एक और ऐप है वो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर चलता है. सो ईजी टू गेट पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वहाँ पर. अपार्ट फ्रॉम दैट इफ़ यू गो टू मिडल ईस्ट, दुबई में जो है वहाँ पर भी मेट्रो सिस्टम है. अफ्रीका में अगर मैं बात करूँ, सो अगर मैं कीनिया भी लेती हूँ एंड मॉरिशस भी लेती हूँ, वहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है लिमिटेड है. सो सपोज यू आर गोइंग सोलो टू एनी ऑफ दिस कंट्रीज जहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट लिमिटेड है, सो आपको बजट भी अपना हाई करना पड़ेगा बिकॉज यू वुड हैव टू हायर मे बी पब्लिक टूर्स या फिर आपको प्राइवेट टैक्सी करवानी पड़ेगी जो कॉस्ट किसी में भी डिवाइड नहीं होगा, विच विल इवेंचुअली increase the cost of your first international trip. We have talked about flights, we have talked about transport like moving domestically inside a country, and the third thing is accommodation. Again, it totally depends आप किसके साथ जा रहे हो and what kind of end goal you have. Like if you want to meet a lot of people, hostels will be a great option. अगर आपको local culture explore करना है, Airbnbs बहुत सही रहते हैं. लाइक आई वॉज सर्चिंग इन थाईलैंड, वियतनाम एंड मलेशिया, यहाँ पर बहुत सारे एयरबीएनबीज अवेलेबल हैं एंड होटल्स तो आपको ईजीली मिल ही जाएंगे. सो वंस यू कैटेगराइज दीज कंट्रीज बेस्ड ऑन ऑल दीज सेक्शंस, काफ़ी सारी कंट्रीज आपके लिए सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी एंड यू विल बी लेफ्ट विद हैंडफुल ऑफ देम. उसके बाद जो आगे का पार्ट आता है इज़ जस्ट टू गो एक्सटेंसिवली लाइक इन डिटेल अबाउट दीज कंट्रीज, एंड आई गेस 1-2 दिल लगाकर आप इजीली डिसाइड कर पाओगे कि आपको अपनी फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप कहाँ पर लेनी है. दिस गोज विदाउट सेइंग इफ़ यू आर समवन जिसने ऑलरेडी कंट्री डिसाइड की हुई थी तो ये वीडियो आपके लिए इतनी हेल्पफुल नहीं रही होगी. बट समवन हु वांट्स टू मेक द मोस्ट ऑफ द फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप, आई होप इस वीडियो में थोड़ी सी आपको एप्लीकेशंस के बारे में पता लगा, थोड़ा रिसर्च के बारे में पता लगा, एंड दिस वीडियो प्रूव्ड हेल्पफुल फॉर यू. And if you were able to decide your first international trip like the country, let me know in the comment section below, and I will be releasing part 2 of it, which will be planning your itinerary for your trip, like the first international trip. Again, talking about कौन कौन से applications मैं use करती हूँ, how I use Google Maps effectively
to plan my trip and if you should go for tours या फिर आपको खुद प्लानिंग करनी चाहिए, सब कुछ मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगी. उसके लिए सब्सक्राइब टू माई चैनल, फॉलो मी ऑन माई सोशल मीडिया चैनल्स, and I'll see you guys next time. Bye bye.